Let's see one more enthalpy here. This is enthalpy of dilution. I have given you the definition here. It is the change in enthalpy that occurs when a solution of one concentration is diluted to form the solution of another concentration. Generally, when the concentration decreases, we say that the solution is diluted. That means the dilution is increased. Right? I have given you an example here. If you can read, the enthalpy change when 1 mole of HCl gas, this is gas, is dissolved in 10 moles of water is minus 69 kilojoules per mole. This is how you can write the reaction. HCl gaseous plus 10 moles of water, HCl 10 moles of water, delta H1. I'll call it as delta H1. It is given. Now, the enthalpy change when 1 mole of HCl gas is dissolved in 30 moles. Here it is 10 moles, which is increased to 30 moles of water. So quantity of water, that is the quantity of solvent, is what we are increasing here. Water is obviously the solvent. And the enthalpy is this, minus 74.2 kilojoules per mole, for which we can write the reaction like this. HCl gas plus 30 moles of water gives this product. That is delta H is this. That means the solution is diluted, correct? Because the amount of solvent is what we are increasing. So now what? Just here. This means that the solution containing 1 mole of HCl gas, which is your solute, in 10 moles initially, correct? 10 moles of water is diluted by adding 20 moles. Correct? Dilution is done by 10 plus 20 moles is 30 moles. So here it is 1 mole of HCl only. The solution HCl gas is 1 mole only. What we are increasing is the quantity of water, and that is by 20 moles of water. Therefore, what I can say is the enthalpy of dilution for 20 moles of water should be what? H2 minus H1. Simply, this H2 minus H1. Whatever is the difference, this should be called as enthalpy of dilution for 20 moles of water. This is a very simple concept of enthalpy of dilution. Okay, let's learn a few numerical problems of thermodynamics. Let's just see first type 1. This is one question. Calculate the work done when 5 moles of an ideal gas expands from 1 meter cube to 10 meter cube against a constant pressure of 2.026 into 10 raised to 2 Newton per meter square at 300 Kelvin. So it's a very simple sum. You can see here I am just writing the data. As you can see, meter cube means volume, and you are given two volumes. The gas is expanding from 1 meter cube to 10 meter cube. So this is the initial volume. The symbol should be V1, and this is the final volume, V2. Correct? That is what we are given. What else is given is the pressure, which is given as 2.026 into 10 raised to 2 Newton per meter square. Now, this is the right combination. Very importantly, I am telling you, the combinations of units I am going to teach you today. This is a perfect combination. If the volume is in meter cube, then the pressure has to be Newton per meter square. This is the right combination. ये मैंने units के lecture में भी सिखाया, some basic concepts of chemistry में. But है ना, ये हमेशा check करना होता है. मतलब अगर ये decimeter cube रहेगा, if this is decimeter cube and this is Newton per meter square, तो वो नहीं चलेगा. करेक्ट? तो फिर decimeter cube को meter cube convert करना पड़ेगा, right? फिर ये दिया और temperature दिया है आपको, right? We are also given temperature 300 Kelvin. What else is given is 5 moles. You are also given N, 5 moles. Correct? What are we supposed to find here? क्या find out करना है? Is the work done? Correct? Calculate the work done. ऐसा बोला है. We are supposed to find the work done. तो work का formula क्या है? है ना, work का formula W is equal to minus P into delta V आएगा, है ना, क्योंकि आपको P दिया है, डेल्टा भी इससे आ सकता है, या W max आएगा, मैक्सिमम वर्क का भी तो है ना, W max is equal to minus 2.303 N दिया है, R का वैल्यू तो आपको मालूम है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट RT है ना, minus 2.303 nRT log to the base 10 of V2 by V1 है ना, तो वो फॉर्मूला आएगा, P आएगा, मतलब
W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा पी आएगा कि W मैक्स का फॉर्मूला आएगा, ऐसा मैं पूछ रहा हूं, कैसे समझेगा? W मैक्स का फॉर्मूला सिर्फ तभी आता है जब आपको गैस इज एक्सपांडिंग आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ऐसा दिया होगा, है ना, क्योंकि W मैक्स या मैक्सिमम वर्क होने के लिए प्रोसेस आइसोथर्मल और रिवर्सिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं आइसोथर्मल या रिवर्सिबल, या एग्जाम में वो लोग देंगे कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, तभी W मैक्स यूज करना, या तो फिर आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली वर्क हो रहा है ना, तभी सिर्फ W मैक्स यूज करना है ना। यहाँ पे आइसोथर्मली रिवर्सिबली ऐसा कुछ बोला नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला लगेगा ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इट इज W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। लेकिन एक फॉर्मूला से काम नहीं होगा, फॉर्म्यूली लिख रहा हूं इसके लिए, क्योंकि डेल्टा वी पहले निकालना पड़ेगा, विच इज ऑलवेज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ऐसे। तो अभी सॉल्व करते हैं फॉर्मूला 2 और फिर फॉर्मूला 1, है ना, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। सोल्यूशन में पहले क्या निकालेंगे? डेल्टा वी, विच इज V2 माइनस V1। व्हाट इज योर V2? You know, it is 10 and V1 is 1. So it is 10 minus 1, which is 9 meter cube. Therefore, what is going to be W? Which is minus P into delta V. What is the pressure? This is your pressure. So this is minus 2.026 into 10 raised to 2 into delta V. Delta V is 9. Correct? And if you have seen the units, ये जानबूझ के लिख रहा हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर क्यूब, ऐसे। तो ये जाएगा ऐसे, बचा न्यूटन मीटर, मतलब आपका आंसर नेगेटिव और जूल जाएगा, राइट। मैंने यूनिट्स के लेक्चर में बताया, इसके पहले के लेक्चर में बताया। ऐसा समय अगर एंट्रेंस एग्जाम में आता है तो पहले क्या मालूम होना चाहिए कि गैस जो है ना, वो क्या कर रहा है? एक्सपांड्स, है ना, ऐसे। एक वर्क ऑफ एक्सपांशन इज नेगेटिव, मतलब आंसर नेगेटिव आना चाहिए, वो तो श्योर है। और दूसरी बात, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, इसका मतलब आंसर जूल में ही आएगा। ये दिखाने के लिए मैंने बताया आपको, न्यूटन मीटर मतलब जूल होता है। तो सॉल्व करने से पहले ही आपको ये मालूम है। तो 4 ऑप्शन में पहले देखना चाहिए कहीं एक ही ऑप्शन नेगेटिव और जूल तो नहीं है, वैसा ही रहेगा, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ दिस कैलकुलेशन कैन बी डन इजीली, है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, है ना। ये इसका टेबल नहीं आता है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका तो आता है ना 9 का। यू कैन मल्टीप्लाई बाय 9, इट विल बी 18 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली, है ना, उसके आसपास आपका आंसर आएगा, राइट। और जो यूनिट्स का कॉम्बिनेशन बोलना था, है ना, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। जस्ट सी हियर, है ना, फर्स्ट केस, इफ द प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल्स, देन वॉल्यूम मस्ट बी कंपल्सरी इन मीटर क्यूब। एंड इन दिस केस, जब कभी R लगेगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना, वो हमेशा 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल में ही आएगा। करेक्ट वैल्यू भी याद रखना, और जूल्स पर केल्विन पर मोल ही आएगा, है ना। ऐसा क्यों है? यू कैन क्रॉस चेक, है ना। जस्ट R, ऐसा क्यों होता है? यू नो PV is equal to nRT, right? PV is equal to nRT. So what is R from this? है ना, R will be PV upon T into N, ऐसे आएगा। अब मैं यूनिट्स डाल रहा हूं सिर्फ, है ना। जस्ट सी, व्हाट प्रेशर क्या बोला मैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा, तो वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? मीटर क्यूब में ही होना चाहिए, करेक्ट ना। अपॉन टेम्परेचर क्या? केल्विन, एंड मोल, ये ऐसा है। ये गया मीटर स्क्वायर, इसमें से एक गया न्यूटन इंटू मीटर, मतलब क्या बचा? जूल, करेक्ट, पर केल्विन पर मोल, ऐसे जो यहाँ पे है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिट्स का कॉम्बिनेशन आपको, है ना, थर्मोडायनामिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट वही है। यूनिट्स का कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है, राइट। और उसके अलावा साइन कन्वेंशंस, है ना, वर्ड का साइन कन्वेंशन, जैसे मैंने आपको बोला, यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा दूसरा और ये आएगा, है ना, जस्ट सी, दूसरा कॉम्बिनेशन यूनिट्स का, उसमें सपोज मान लो इफ द प्रेशर is in atmospheres, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, atmospheres, देन सबसे पहली बात, वॉल्यूम कंपल्सरी या तो लीटर में होना चाहिए या डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए या डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, और तभी R जो है ना, वो आएगा 0.08206 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये आना चाहिए। ये कॉम्बिनेशंस याद रखना,
फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी होगा और साइन कन्वेंशन अपने याद रखना चाहिए. वर्क ऑफ एक्सपांशन इज नेगेटिव, वर्क ऑफ कंप्रेशन इज पॉजिटिव. वो एंट्रेंस के लिए. बाकी एचएससी आप बोर्ड एग्जाम जब देते हैं तो ये पैटर्न है सम सॉल्व करने का. डेटा क्या फाइंड आउट करना है वो लिखना है, फॉर्मूला और फिर सोल्यूशन, है ना, इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए. दिस इज बेसिकली द मेथड हाउ वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट टाइम. Okay, let's just see sum number 2, second question of the same type. Calculate the work done when 4 moles of an ideal gas expands from 10 dm cube to 25 dm cube against a constant pressure of 101.325 kilopascals. Now here, you know the answer is negative. And before solving only, because work of expansion is always negative, right? The system is gas basically. And the system is performing work of expansion, so it has to be negative. Before solving, we know. Now you check the combinations of units, volumes. Both the volumes, initial volume and final volumes, are given in decimeter cube, and pressure is given as kilopascals. Is it the right combination? No. Correct or not? Volume, if it is in decimeter cube, the pressure has to be in atmospheres. Right or not? So we can convert volume into meter cube. This volume I can convert into meter cube, then the combination is fine. Pascal or kilopascal, if the pressure is in pascal or kilopascal, that doesn't matter. Pascal or kilopascal, the volume has to be meter cube. See, now this depends. In your entrance exams, you will be given 4 choices. Out of that, you have to look at the units. Now, if they expect the answer in joules, they will give all the 4 options in joules. 2 options, positive, 2 negative. But out of that, you know, this question, for this particular question, your answer is going to be negative. So, दो पॉजिटिव वाले निकल गए, नेगेटिव आएगा, इतना पक्का. और चारों जूल्स रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपको ये बाय डिफॉल्ट मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. और फिर प्रेशर पास्कल मतलब ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो आपका आंसर किलो जूल्स में आएगा. कैसे मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके. है ना, दिस इज प्रीटी सिंपल. जैसे मैंने फॉलो किया था वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं, है ना. डेटा सबसे पहले आपको क्या दिया है, इनिशियल वॉल्यूम V1 is given as 10 decimeter cube, right? Then V2 is given as 25 decimeter cube, है ना, इसको लिखा. फिर प्रेशर is given as 101.325 kilopascals, right? ना मतलब ही किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड नंबर ऑफ मोल्स वी आर गिवन 4 moles, right? And we are also given temperature which is 300 Kelvin. ये लिखे हो गया. Then what are we supposed to find? क्या find out करना है? What are we supposed to find is work. वो तो simple है. Correct ना? Formula. इसका formula क्या आएगा? What will be the formula for this? है ना, वापस वही आएगा W. Correct ना? Is equal to minus P into delta. Work done under isothermal and irreversible process. Correct ना? कहीं पे भी यहाँ पे आइसोथर्मल और रिवर्सिबल लिखा नहीं है. करेक्ट है. तो W मैक्स आएगा नहीं मैक्सिमम वर्क निकालो ऐसा बोला है. तो यही फॉर्मूला आएगा, है ना. ये फॉर्मूला नंबर 1 ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला नंबर 2 विल बी डेल्टा V व्हिच इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. करेक्ट ना. तो एक से ज्यादा फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए ऐसा फॉर्मूला लिखता हूँ मैं हमेशा. देन सोल्यूशन, है ना. सोल्यूशन में क्या करेंगे, पहले डेल्टा V निकाल लेते हैं. V2 is 25 decimeter cube, V1 is 10, so this is 15 decimeter cube needs to be converted into meter cube. So that is 15 into 10 raised to minus 3 meter cube. ये हो गया. Correct. Now finally work done is minus P. Pressure is 101.325 kilopascals. Pascal means Newton per meter square only, multiplied by 15 into 10 raised to minus 3 meter cube. Correct? So this gets cancelled. Ultimately you have answer in negative and in kilojoules. ऐसा. और ऑप्शंस अगर सारे जूल्स में रहेंगे तो kilojoules to joules आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इट बाय 1000. दैट इज प्रीटी सिंपल. एंड देन 15 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1500 के रेंज का आने वाला है. करेक्ट ना. इनटू 10 raised to minus 3. ये ऐसे इनटू 10 raised to minus 3. ये 10 raised to minus 3 तो वैसे ही रहेगा. और ये ऑलमोस्ट 100 है अप्रोक्सीमेटली. तो 1500 into 10 raised to minus 3 ऐसे, you know, that is what we can calculate.
आर यू गेटिंग इट और नॉट? इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 जूल्स के आसपास आंसर आएगा, उस रेंज में, क्योंकि आपको एंट्रेंस में टाइम कम होता है, तो ये 15 1 जा 15 2 जा ऐसा सब 15 5 जा जो भी है ना, वो लिटरली कैलकुलेशन मत करना, यू हैव टू डू अप्रोक्सीमेशन। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया है ना? सो दैट इज वेरी सिंपल। और इसके लिए मैंने कहा यूनिट्स का कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? मैंने यहाँ पे यूनिट्स का कॉम्बिनेशन चेक किया, ये बराबर कॉम्बिनेशन नहीं है, इसके लिए डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब किया, करेक्ट है? किलो पास्कल मतलब ही किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब चलता है, सो कैंसिलेशन होके अल्टीमेटली दिस इज द आंसर दैट वी गेट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम नंबर 3। Calculate the work done when two poles of an ideal gas expands isothermally against a constant external pressure of 2280 millimeters of height of mercury column mm of Hg from 500 centimeter cube to 5500 centimeter cube. Again, you know one thing for sure, that your answer is going to be negative. It is work of expansion again. Your answer is going to be negative. Now you see the combinations of units, volume is in centimeter cube and the pressure is in mm of Hg. अब ये कुछ भी दिया नहीं है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मीटर क्यूब, और इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, एटमॉस्फेयर्स, फिर भी नहीं चलेगा। mm of Hg को एटमॉस्फेयर्स में कन्वर्ट करना इजी है, नाउ दिस यू शुड नो, करेक्ट? mm of Hg 760 mm of Hg इज 1 एटमॉस्फेयर, तो इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये लीटर में होना चाहिए या डेसीमीटर क्यूब, करेक्ट ना? तो वो कॉम्बिनेशन चल सकता है ना? क्यों, मैं आपको वापस बता रहा हूँ पूरा सम सॉल्व करके, जस्ट हियर, है ना? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डेटा अगेन, इनिशियल वॉल्यूम V1 इज गिवन एज 500 सेंटीमीटर क्यूब, इसको सीसी ऐसा भी लिखते हैं कई बार। द फाइनल वॉल्यूम इज 5500 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? हियर द एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन एज 2280 mm of Hg. Correct? This I can convert it here itself. This is 3 times of 760. 760 mm of Hg का 3 times है, तो this I can very well write as 3 atmospheres. तो ये तो तय हो गया कि ये प्रेशर एटमॉस्फेयर में, तो इसको मैं लीटर्स कर दूंगा, है ना? सॉल्व करते हो, कैलकुलेशन करते हो, राइट? एंड देन व्हाट वी आर गिवन इज नंबर ऑफ मोल्स व्हिच इज 2 मोल, है ना? उसकी एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है वैसे, correct or not? It's just unnecessary data. Then what we are supposed to find here, है ना? ये isothermally बोला है, as you can see isothermally, right? Isothermally reversibly बोला नहीं है, तो अभी भी W is equal to minus P into delta V आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना? यहाँ पे डेटा अलग से उन्होंने दिया नहीं है। टू फाइंड इज वर्क, और वर्क का फॉर्मूला वही आएगा जो अब तक हमने डिस्कस किया था, है ना? इट शुड बी, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, है ना? 2 फॉर्मूला लगने आ रहा है, एक तो W का और दूसरा डेल्टा V का, करेक्ट और नॉट? ये W का क्या आएगा, माइनस P इंटू डेल्टा V, जैसे मैंने कहा आइसोथर्मली रिवर्सिबल, या W मैक्स बोला नहीं है, तो W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V आएगा, एंड डेल्टा V इज V2 माइनस V1, ऐसे, करेक्ट? नाउ इन द सॉल्यूशन, first thing first, I will find out delta V. V2 is 5500 centimeter cube minus 500 centimeter cube, which is 5000 centimeter cube, है ना? Which is 5 liters, करेक्ट ना? सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर्स, तो डेल्टा V आपका हो गया लीटर्स में, therefore work done should be minus P into delta V. Now what is the pressure given? 3 atmospheres, मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ, करेक्ट ना? ये सही कॉम्बिनेशन देखो, एटमॉस्फेयर और लीटर, है ना? चेक करो, एटमॉस्फेयर और लीटर, मैंने जानबूझ के रखा है बोर्ड पे, इट्स अ राइट कॉम्बिनेशन, 3 atmospheres multiplied by 5 liters. Your answer is going to be 15 minus 15 liter atmospheres, which you can easily convert into joules, करेक्ट ना? क्यों करने का ऐसा? लुकिंग एट द ऑप्शंस, मैं एंट्रेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, 4 चॉइसेस है, चारों आंसर आपको जूल्स में दिए, मतलब कौन सा यूनिट में आंसर लाना चाहिए, कैसे समझेगा? लुक एट द ऑप्शंस, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आंसर निकालो, तो उनको चारों ऑप्शन उसी यूनिट में लेना पड़ेगा जनरली, करेक्ट ना? और इसके लिए यूनिट्स का कन्वर्जेंस बाय हार्ट होना जरूरी है, जो इसके पहले के लेक्चर में मैं ले चुका हूं। तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या आएगा, माइनस 1500 जूल्स, ऐसे, करेक्ट ना? बिकॉज यू नो 1 लीटर एटमॉस्फेयर
इज 101.325 जूल्स ऐसे, तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 ही हो गया ना जूल्स ऐसे, करेक्ट ना। इसके लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करके ये अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर निकाला। सी अगेन द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट्स, करेक्ट। एक्सपांशन इसके लिए नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यूनिट्स इसको बाय हार्ट नहीं है, उसके लिए थर्मोडायनामिक्स का न्यूमेरिकल्स विल ऑलवेज बी अ डिफिकल्टी, सो प्लीज बाय हार्ट द यूनिट्स। ओके, प्लीज सी द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4। Calculate the work done when 5 moles of an ideal gas is compressed isothermally against the constant external pressure of 2 atmospheres from 20 dm³ to 10 dm³. Now here we are given work of compression. So one thing you know for sure before solving that your answer is going to be positive. Work of compression is positive. रहा सवाल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पे सही कॉम्बिनेशन है, प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इज इन dm³। प्रेशर एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन dm³, तो उसको वैसे ही करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये कंप्रेशन वाला है, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम आपका जो है वो 20 डेसीमीटर क्यूब है और फाइनल वॉल्यूम कम है, मतलब कंप्रेशन फिक्स है, और प्रेशर आपको दिया गया है 2 एटमॉस्फेयर्स, करेक्ट। एंड 5 मोल्स वो सब तो इधर लगेगा नहीं, करेक्ट। व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड इज वर्क, देन द फॉर्मूला अगेन इट इज W is equal to minus P delta। अभी मैं वापस बता रहा हूं, W max नहीं आएगा मैक्सिमम वर्क का, क्योंकि आइसोथर्मली रिवर्सिबली बोला नहीं है ना। मैं तीसरी चौथी बार बता रहा हूं, आइसोथर्मली रिवर्सिबली रहेगा तो ही W max आता है, राइट। या कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क ऐसा बोला रहेगा, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। इसके लिए माइनस P इंटू डेल्टा V ये वाला फॉर्मूला आएगा, और दूसरा फॉर्मूला ऑफ कोर्स डेल्टा V विच इज V2 माइनस V1। तो सोल्यूशन में शुरू कर देते हैं हम लोग। V डेल्टा में निकालते हैं, V2 10 है और V1 20 है, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 10 डेसीमीटर क्यूब, करेक्ट है, या माइनस 10 लीटर्स व्हाटएवर। देन वर्क फाइनली इट इज है ना माइनस P डेल्टा V, ये तो फॉर्मूला का नेगेटिव है ना, माइनस साइन, करेक्ट। फिर वॉल्यूम ये प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर गिवन 2 एटमॉस्फेयर्स and multiply by volume. Volume itself is negative, correct। 10 डेसीमीटर क्यूब या 10 लीटर्स लिखता हूं, ऐसे वो सेम ही होता है, करेक्ट ना, डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो वर्क इज गोइंग टू बी व्हाट माइनस 20 लीटर एटमॉस्फेयर्स, करेक्ट, व्हिच यू कैन इजीली कन्वर्ट इनटू जूल्स। मल्टीप्लाई दिस बाय 1015325 or approximately multiplied by 100, your answer will be of the range of 2000 है ना, और ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट है। क्यू प्लस ये माइनस और ये माइनस है, तो ये ऐसे आएगा, करेक्ट है ना। सी योर आंसर इज पॉजिटिव, राइट। तो नहीं, ये जानबूझ के लिख रहा हूँ पॉजिटिव ऐसा, क्योंकि कंप्रेशन है। कैन यू सी दिस, कंप्रेशन दिया गया है, तो वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। एंड यूनिट्स आर लीटर एटमॉस्फेयर व्हिच यू कैन इजीली कन्वर्ट इनटू जूल्स। एज आई सेड, योर यूनिट शुड बी बाय हार्ट। Okay, let's see the next question. Question number 5. Calculate the final volume in meter cube if the work done is 1.515 kilojoules during the expansion of 15.5 decimeter cube of an ideal gas against the constant pressure of 2.02 into 10⁵ Newton per meter square। अब एक चीज पक्का है कि आपका जो आंसर है ये इनिशियल वॉल्यूम है, और आपको कौन सा पूछा है, फाइनल वॉल्यूम। एक्सपेंशन में क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम कम होता है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो आपका आंसर जो है तो इससे बड़ा ही आएगा। 15.5 से बड़ा नंबर और मीटर क्यूब में सिर्फ आपको देखना है, तो 4 ऑप्शन में पहले वो देख लेना, कहीं एक ही नंबर 15.5 से बड़ा तो नहीं है, करेक्ट ना। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, उधर ही सॉल्व हो गया। अब रहा सॉल्व करने का, यहाँ पे भी यूनिट्स और बहुत सारी चीजें डेटा में सीखने लायक है। पहले मैं डेटा लिख रहा हूँ डिटेल्स में, जस्ट सी डेटा में सबसे पहले आपको क्या दिया है, work done दिया गया है। Now in this sum work done is given as 1.515 kilojoules, right। Now listen carefully, इसमें 2 चेंजेस होंगे। एक तो माइनस आएगा, उन्होंने दिया नहीं किधर भी, लेकिन ये दिया है एक्सपांशन, इसके लिए हमें माइनस लेना चाहिए। See, this is how we use sign conventions, right। ये आना चाहिए। दूसरी बात है ना, मैं लिख लेता हूँ, ये आपको दिया हुआ इनिशियल वॉल्यूम है, इसके लिए V1 लिख रहा हूँ 15.5 डेसीमीटर क्यूब, करेक्ट। और भी डेटा दिया है, प्रेशर दिया गया है,
pressure is given as 2.02 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये भी कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये क्या होना चाहिए मीटर क्यूब, तो इसको कन्वर्ट कर रहा हूं 15.5 into 10 raised to -3 मीटर क्यूब, राइट। अब अगर आप देखते हैं यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये किलो जूल यानी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय किलो जूल, जूल क्या होता है ना, किलो जूल मतलब किलो न्यूटन इनटू मीटर होगा ऐसे, आर यू गेटिंग इट। तो ये किलो हटाना पड़ेगा है ना, सिर्फ जूल रखेंगे तो न्यूटन इनटू मीटर आएगा, फिर इजी होगा, आर यू गेटिंग इट। इसलिए इसको किलो जूल्स का जूल्स भी कर लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो -1515 जूल्स ऐसे आएगा। मैं सॉल्व करूंगा तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझेगा, मैं यूनिट्स के साथ लिखवा के दूंगा, राइट। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या फाइंड आउट करना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है ना, फाइनल वॉल्यूम मतलब V2, करेक्ट। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा है ना, व्हिच फॉर्मूला आर वी सपोज टू यूज हियर, इट इज गोइंग टू बी W इज इक्वल टू -P डेल्टा V, करेक्ट और नॉट, ऐसे W मैक्स क्यों नहीं आएगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कुछ बोला नहीं है, तो यही फॉर्मूला है, करेक्ट और नॉट। इसको थोड़ा सा अलग से लिख रहा हूं सॉल्यूशन में, जस्ट हियर इन द सॉल्यूशन है ना, what we can write is therefore delta V which is equal to W upon -P, करेक्ट ना, ये फॉर्मूला है, सिर्फ थोड़ा सा अलग लिखा है, ये माइनस साइन को P के साथ लेके यहाँ पे ले लिया। So what up next, this should be V2 minus V1 should be equal to W. Now what is W given, ये जो हमने चेंज किया है, now you see -1515 जूल है, जूल मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, जस्ट सी केयरफुली, न्यूटन इनटू मीटर, इसके लिए वो किलो हटा दिया, ये तो कैंसिलेशन नहीं होगा, कैसे आगे लिखते हैं ये समझा, जूल को न्यूटन इनटू मीटर लिखा जानबूझ के, ये तो वर्क खुद माइनस है और ये फॉर्मूला का माइनस, ठीक है ना। और प्रेशर हाउ मच इज गिवन 2.02 into 10 raised to 5, what are the units, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ये सही हुआ कि नहीं। अभी ये कैंसिल होगा, ये न्यूटन और ये न्यूटन, अगर ये मैं किलो जूल्स टू जूल्स नहीं करता तो ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, फिर ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, इसके लिए जूल कर दिया, अभी कैंसिलेशन हो सकता है, करेक्ट और नॉट। व्हाटएवर द आंसर इज गोइंग टू बी, नेगेटिव नेगेटिव मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट, और ये मीटर रेज़ टू माइनस में ऊपर जाके ये मीटर क्यूब में आएगा, व्हाटएवर इट इज मीटर क्यूब में आएगा, और आपको निकालना क्या है V2, करेक्ट और नॉट, ऐसे तो V1 ऐड हो जाएगा, तो V1 इधर ऐड होने के लिए वो भी मीटर क्यूब में होना चाहिए कि नहीं, ऐसा जो हमने कन्वर्ट करके रखा है, जी हमने क्यों कन्वर्ट किया समझ में, क्योंकि ये आंसर मीटर क्यूब में आ रहा है, राइट, मीटर क्यूब और मीटर क्यूब ही ऐड हो सकता है सिर्फ, करेक्ट है, डेसीमीटर क्यूब नहीं चलेगा, हमने तो कर दिया, फिर ये हो सकता है, ऑब्वियसली इसका को कैलकुलेशन करके आंसर निकालना पड़ेगा, मैं कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूं, दैट यू कैन इजीली डू, करेक्ट है, ये करके 10 का पावर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 10⁻³ है, करेक्ट है, तो ये ऊपर जाके 10⁻5 होगा, यू हैव टू शिफ्ट द डेसिमल, उसको 10⁻³ करके 10⁻³ कॉमन निकालना पड़ेगा, है ना, दैट कैलकुलेशन पार्ट कैन बी इजीली डन, है ना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये 10⁻³ में आने वाला है और ये 10⁻5 में, डेसिमल शिफ्ट करके दोनों को 10⁻³ करके 10⁻³ कॉमन निकाल के एडिशन होगा, व्हाटएवर इट इज, आंसर इससे बड़ा आने वाला है, करेक्ट नहीं, 15.5 इधर आएगा ना, 15.5 into 10⁻³ से समथिंग ऐड करके, मतलब V2 इससे बड़ा ही आएगा, दैट इज व्हाट इट इज, जो मैंने आपको कहा कि ऑप्शंस में देखना चाहिए, राइट। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है ना, आप कर सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम इन डूइंग दैट। ओके, लेट्स सी टाइप 2, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप 2, calculate the work done when 2 moles of an ideal gas expands isothermally and reversibly from 10 pm³ to 20 pm³ at 300 Kelvin, and R is given as 8.314 joules per Kelvin per mole. Now in this, the work which we are supposed to find, इसके बारे में सॉल्व करने से पहले 3 चीजें मालूम है। पहली बात तो ये डब्ल्यू मैक्स से आने वाला है ना, यू सी आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ये तो आया, मतलब इट इज मैक्सिमम वर्क, डब्ल्यू मैक्स आएगा। दूसरी बात, आंसर नेगेटिव ही आएगा, है ना, बिकॉज इट इज वर्क ऑफ एक्सपांशन, आंसर नेगेटिव आएगा, आंसर का यूनिट जूल्स में ही आएगा, क्योंकि डब्ल्यू मैक्स और आर का यूनिट सेम आता है, आर की यूनिट्स में जूल्स है,
इसका मतलब डब्ल्यू मैक्स श्योरली जूल्स में आएगा, नेगेटिव आएगा जूल्स ही आएगा, गारंटेड नेगेटिव क्योंकि एक्सपांशन है। आर यू गेटिंग इट? और आर का यूनिट्स और डब्ल्यू मैक्स का यूनिट सेम होना चाहिए, ये इसके पहले के लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ सिनॉप्सिस में, राइट। और डब्ल्यू मैक्स क्यों आएगा मैंने बताया, आइसोथर्मल है रिवर्सिबली। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पहला समय इसके लिए पूरा डिटेल में सॉल्व करूंगा। थोड़ा जो बोर्ड ओरिएंटेड सीखने वाले बच्चे हैं, लॉग कैलकुलेशन कैसे लिखते हैं उनके लिए मैं कैलकुलेशन जनरली मैं लॉग कैलकुलेशन करता नहीं हूँ, बट इस समय एक आध दो बार मैं दिखा दूंगा। डेटा में सबसे पहले आपको दिया है नंबर ऑफ मोल्स, यू आर गिवन 2 मोल्स, राइट, ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 2, फ्रॉम मतलब हो गया V1 10 dm³ and V2 20 dm³। Now listen carefully, डब्ल्यूमैक्स का समय की तो फिक्स है, उसमें इनका यूनिट सेम होना चाहिए, एक मीटर क्यूब और एक dm³ नहीं चलेगा क्योंकि वो कैंसिलेशन ऑफ यूनिट नहीं होगा, इनका यूनिट सेम होना चाहिए, वो हमने चेक कर लिया। वी आर आल्सो गिवन द टेंपरेचर एज 300 केल्विन and we are given R is given as universal gas constant is given as 8.314 joules per Kelvin per mole, ठीक है, ये डेटा है। What are we supposed to find here is the work done, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा W max, करेक्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, लेट्स जस्ट सी द फॉर्मूला, ये सब हो चुका है, करेक्ट। एक ही फॉर्मूला काफी है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वाला आएगा, है ना, क्योंकि डेटा में वॉल्यूम है, -2.303 nRT log to the base 10 of V2 by V1। देखो वॉल्यूम का रेशियो है, इसके लिए मैंने कहा कि उनका यूनिट सेम होना चाहिए, जो सेम है तो कैंसिल होगा, करेक्ट। तो ये यूनिट लेस हो गया कि नहीं। अब देखो मैंने क्यों ऐसा कहा था कि आर का यूनिट से तय होता है कि डब्ल्यू मैक्स का यूनिट क्या आएगा, है ना, आर जूल्स में है, करेक्ट, डब्ल्यू मैक्स में जूल्स में आएगा। क्यों, जस्ट सी 2.303 को तो यूनिट्स नहीं है, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, उसका यूनिट आएगा मोल, आर जैसे दिया है जूल पर केल्विन पर मोल मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर इज गिवन इन केल्विन, है ना, ये तो यूनिट लेस हो जाएगा, log to the base 10 of V2 by V1 यूनिट लेस हो जाएगा। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, मोल गया, केल्विन गया, क्या बचा, जूल्स। तो आर अगर जूल्स में तो डब्ल्यू मैक्स जूल्स में आएगा। एंट्रेंस के लिए भी ये यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। रेस्ट इज नाउ कैलकुलेशन, है ना, इन द सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू सी द कैलकुलेशन। देयरफॉर डब्ल्यू मैक्स is going to be -2.303 n, how much it is given, 2 moles, and R is 8.314 joules per Kelvin per mole, temperature is given as 300 Kelvin multiplied by log to the base 10 of V2 by V1, V2 by V1 is 20 by 10, so it is going to be log 2, करेक्ट ना, यस। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, जैसे मैंने कहा गड़बड़ मत करना। -2.303 into 2 into 8.314 into 300 into log 2 is 0.3010। ये तो जनरली बायट होता है, केमिकल काइनेटिक्स में भी लगता है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, थियरी के लिए कैसे लिखना चाहिए वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एचएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थियरी पेपर के लिए। ये माइनस लिख दिया, एंटी लॉग ऑफ, यस, कैलकुलेशन, लॉग कैलकुलेशन, इसका लॉग शुड बी 0 पॉइंट आएगा 3623, लॉग ऑफ 2 अगेन 0.3010, ये ऐसे, है ना, प्लस लॉग ऑफ दिस इज 0.9198, लॉग ऑफ 300, है ना, 300 मतलब ये पहले तो 2 पॉइंट हो जाएगा, करेक्ट, और log of 3 आता है 4771, ऐसे आता है, एंड देन ये इसका बार 1, है ना, log of 0.3010 is somewhere around 48, ऐसा कुछ आता है, 4786 ऐसे कुछ आता है ना, अप्रोक्सीमेटली। फिर इसको ऐड करके इसका एंटी लॉग लिखना चाहिए, करेक्ट, है ना। एडिंग दिस इज नाउ सिंपल, जो आंसर आएगा यहाँ पे उसका सिर्फ एंटी लॉग लिखना चाहिए, राइट, दैट इज द
कैलकुलेशन पार्ट इज प्रीटी सिंपल, एडिशन सिंपल है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मैं सिर्फ थ्योरी एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, है ना। जैसे इसका आंसर आएगा, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर श्योर, एंड योर आंसर विल बी इन जूल्स, है ना, वो पक्का इतना आंसर इसका आएगा, राइट। सो एडिशन यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, उतना एडिशन तो आपको आएगा, उसका एंटीलॉग देख सकते हैं। प्लीज सी द नेक्स्ट सम, number 2 of type 2. Calculate the work done when 16 grams of oxygen at 300 Kelvin expands isothermally and reversibly till its volume is doubled. So again, this is a question of W max. कैसे समझा? Isothermally and reversibly. Your answer is going to be negative क्योंकि expansion है। तीसरी बात, आपके आंसर का यूनिट जूल्स आएगा क्योंकि R जो दिया है वो जूल्स में है, करेक्ट ना? Okay, so let's just write down the data here. What are we given? We are given the mass of oxygen, यहाँ पे गैस आपको दिया गया है, which is given as 16 grams. तो यहाँ से मैं number of moles निकालता हूँ, क्योंकि W max का जो फॉर्मूला है ना, हमने लिखा था, उसमें n लगता है number of moles. So that is mass upon molar mass. This is mole concept, which is 0.5 mole. Correct ना? इसकी जरूरत है. This is just a little bit different. जरूरी है कि number of moles straight away देंगे. Correct? इसके पहले के सम्स में number of moles directly दिया था, अभी यहाँ पे mass दिया है. मैंने mole concept use किया है. Right? Then what we are given is the temperature, which is 300 Kelvin. We are also given R, which is 8.314 joules per Kelvin per mole. Right? And what else is given is till the volume is doubled, till its volume is doubled. इसका मतलब क्या होता है? The final volume is twice of the initial volume. The final volume is twice of the initial volume. करेक्ट है ना? तो फिर है ना V2 by V1 जो अपने को लगता है ना, इधर से आएगा ना ऐसे V2 by V1 should be 2, इसकी जरूरत है अपने को, राइट। तो टू फाइंड इट्स व्हाट वर्क, बट कौन सा वर्क? W max, है ना, आइसोथर्मली रिवर्सिबली, इसके लिए ऐसे आएगा। एंड W max का फॉर्मूला आप जानते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 2.303 n, ये है ना n लगता है ना, इसके लिए निकालेगा। फिर R जो दिया गया है, टेम्परेचर दिया है केल्विन में, log to the base 10 of V2 by V1. Yes. Hope we are getting this. तो V2 by V1 हमने निकाला है, right? Rest is just substitution and calculation, है ना? It is that simple. तो यहाँ पे ये थोड़ा अलग है, mass दिया है, number of moles निकाला है, till its volume is doubled. इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए that the final volume is twice of initial volume. फिर V1 इधर ले लिया, V2 by V1 will be, है ना, here 2 आएगा ऐसे, and then rest is calculation, which is pretty simple, right? इसके बाद और एक सम देखते हैं कंप्रेशन का। See the next question, question number 3. Calculate the work done when 2.2 into 10 raised to minus 2 kg of carbon dioxide is compressed isothermally and reversibly till its pressure is doubled at 300 Kelvin. So again, what we are supposed to find out is W max. कैसे समझा? है ना, आइसोथर्मली और रिवर्सिबली दिया है, करेक्ट। दूसरी बात कंप्रेशन है, मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा, है ना, गारंटेड आंसर पॉजिटिव आएगा। तीसरी बात, उसका यूनिट जूल्स नहीं आएगा, W max का यूनिट जूल्स में आएगा क्योंकि R जूल्स में है। अब ये देखो प्रेशर डबल हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है ना, इट्स अ कंफर्मेशन की कंप्रेशन हो रहा है, राइट। सबसे पहली बात हम लोग डेटा लिख लेते हैं। अगेन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन, हाउ मच इज दैट गिवन? It is 22 grams. मैं सीधा कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट है ना? 2.2 into 10 raised to minus 2 kg मतलब 22 into 10 raised to minus 3 kg. डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो that is 22 grams. करेक्ट? तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना पड़ेगा. That is mass upon molar mass. कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास is 44. So again this is 0.5 moles. Right? And then what? What up next? Here we are supposed to write the next data. What is given? R is given as 8.314 joules per Kelvin per mole. We are also given the temperature, which is 300 Kelvin. nRT. And what else is given is the pressure is doubled. Pressure is doubled means the final pressure is twice that of initial pressure. Correct? ऐसा. So now W max का formula in terms of pressure वाला लेना चाहिए, which is minus 2.303 nRT
log to the base 10 of P1 by P2 होता है। तो मैं P1 by P2 करूँ तो 1/2 हो जाएगा। ये P1 by P2 करूँगा अगर, यहाँ से आप देख सकते हैं P1 by P2 करूँगा तो 1/2 हो जाएगा, which is 0.5, जिसका log निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, ये मैंने सिनॉप्सिस में बताया था, ये P1 by P2 लेने की जगह पे P2 by P1 ही ले लेना है ऐसे। P2 by P1, what will be P2 by P1 from this? क्या आएगा P2 by P1? तो 2 आएगा कि नहीं ऐसे। तो ये P2 by P1 कर दिया तो इधर चेंज हो जाएगा, है ना। कैसे मैं सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, जस्ट हियर देयरफॉर W max है ना इज इक्वल टू -2.303 nRT, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, log to the base 10 of ओरिजिनल फॉर्मूला P1 by P2 है, लेकिन मैं उल्टा कर रहा हूँ P2 by P1, तो ये प्लस हो जाएगा। करेक्ट कर रहा हूँ, आपने को प्लस ही चाहिए, कंप्रेशन मतलब वो पॉजिटिव आएगा कि नहीं। सर मैं दिस इज सिंपल मैथ्स, log of A by B is minus log B by A, है ना। तो मैंने उल्टा कर दिया, A by B का B by A कर दिया ना, ओरिजिनल फॉर्मूला P1 by P2 मैंने उल्टा कर दिया, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन इजी होगा और कुछ नहीं, आपकी मर्जी जैसे आप करना चाहते हैं, बट कैलकुलेशन विल बी इजी। मैं सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज 0.5, then R is 8.314, temperature is 300 Kelvin multiplied by log to the base 10 of 2, ये क्योंकि P2 by P1 is 2, तो ये कैलकुलेशन इजी है, और ये माइनस नहीं प्लस होगा, ये प्लस हो चुका है, आपका आंसर प्लस में आएगा और ऑब्वियसली जूल्स में आएगा। फिर कंप्रेशन इसके लिए प्लस है ना, आर का यूनिट है ना, वो सब मैं बता चुका हूँ। तो दिस इज माय सजेशन, है ना। W max का सम है और कंप्रेशन का है, ये कॉम्बिनेशन आएगा, तो भले ही ओरिजिनल फॉर्मूला log of P1 by P2 है, सॉल्व करते हुए आप P2 by P1 ले लेंगे, क्योंकि P1 by P2 में P1 छोटा और P2 बड़ा है। अभी ये नंबर्स तो बहुत सिंपल है, करेक्ट, लेकिन डिफिकल्ट नंबर दे दिया जिसमें ये छोटा और ये बड़ा, तो लॉग कैलकुलेशन बहुत खतरनाक हो जाता है ना। ऐसा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है ना, मैंने सिखाया है। तब ये उल्टा करना चाहिए, नल्स इक्वेशन में आता है, करेक्ट। बट देन ये आपके लिए कंप्रेशन का सम मैंने इसके लिए लिया है, सो दैट द कैलकुलेशंस रियली बिकम सिंपल। प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। Okay, please see the next question. Question number 4. In a reversible isothermal expansion, 2.1 into 10 raised to minus 2 kg of oxygen, 1.215 kilojoules of maximum work is performed. If its initial volume is 5 meter cube at 300 Kelvin, calculate its final volume. So final volume obviously is going to be greater than this. 5 meter cube से बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि एक्सपांशन है, तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से बड़ा होना चाहिए। तो एंट्रेंस एग्जाम में 4 ऑप्शन में देखना चाहिए, कहीं एक ही ऑप्शन 5 मीटर क्यूब से बड़ा तो नहीं है, तो उधर ही सम सॉल्व हो गया। बाकी इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, दैट विल सी। योर मैं डेटा लिख रहा हूँ, इसका भी मैं थोड़ा लॉग कैलकुलेशन करूंगा, है ना। थियोरी में जो बच्चे थियोरी लिखते हैं बहुत सारे, है ना, उसमें ये बहुत मायने रखता है, इसके लिए कैलकुलेशन करूंगा। यहाँ पे भी मास ऑफ O2 दिया है, how much it is given, mass of O2 is given as 21 grams, मैंने कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम का ग्राम में, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, मास अपॉन मोलर मास, और इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा कैलकुलेशन करने वाला हूँ, ये ऐसे नंबर्स का कैलकुलेशन बहुत टीडियस होता है। देन what else is given is the initial volume, it is V1 as 5 meter cube, temperature is given as 300 Kelvin, right? Then what we are given is W max, it is given, which is given as 1.215 kilojoules. Now you see, you know, this is expansion, maximum work जो है इसमें expansion है, expansion है मतलब हमने नेगेटिव लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप R लेंगे, ये चेंज किया मैंने, R अगर आप देखेंगे 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल में। अब W max और R का यूनिट्स अलग नहीं हो सकता है, मतलब ये जूल्स और ये किलो जूल्स नहीं चलेगा, तो इसको जूल्स में कन्वर्ट करना इजी रहेगा। दैट विल बी 1215 जूल्स, है ना, मल्टीप्लाई दिस बाय थाउजेंड्स, दैट इज ऑलवेज इजी, है ना। इस तरीके से हो गया। व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड इज द फाइनल वॉल्यूम V2, जिसके लिए फॉर्मूला तो वही आएगा W max का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वाला, W max
is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of V2 by V1। इसी फॉर्मूला में अपने को V2 निकालने का, बाकी सब कुछ दिया है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ। This here in the solution, what we can do is we should start like this, log to the base 10 of V2 by V1 को एक तरफ कर लो, तो ऑब्वियसली minus 2.03 nRT W max के डिनोमिनेटर में आएगा, and it should be W max upon minus 2.303 nRT, and therefore log to the base 10 of V2 by V1, ये थोड़ा tedious calculation है, substitution कर रहा हूँ। What is W max? It is negative 1215 upon minus 2.303, है ना, इसलिए माइनस साइन चले जाएगा। कैन यू सी दैट? वही अपने लिए परफेक्ट है, क्योंकि माइनस साइन रहेगा तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। When n is 21/32, तो 32 ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। R is 8.314 and then temperature is 300 Kelvin. Correct? Now here numerator, ये n मतलब न्यूमरेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर, ऐसे लिखता हूँ, है ना। ये थियरी के बच्चों के लिए इसका लॉग should be 3 point, है ना, इसका लॉग is somewhere around 0.845। I am not sure, मतलब अभी आपको लॉग रखने की जरूरत नहीं, वो लोग एग्जाम में देंगे आपको। ये ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ बाय प्रैक्टिस 0.5051 ऐसे। तो दिस यू कैन ऐड 4.5896। Yes, and now denominator log of this is 0.3623 plus log of 21 is 1.322. Log of this is 0.9198 plus log of 300 is 2.4771. So this I need to add. This should be 5.0814, correct? Then the numerator minus denominator, है ना, ये अपने को करना है। तो numerator is ये minus the denominator, ये माइनस कर देता हूँ इसको 5.0814, है ना, ये numerator minus denominator. So this is going to be 2805. And this is supposed to be bar 1, correct? ये ऐसे। फिर इसका anti-log is what you are supposed to see, correct ना? इसका anti-log ये लिखना है, ये कैलकुलेशन है। So what is it going to be? Log to the base 10 of V2 by V1 will be anti-log of this, which will be 0.322. So what will be V2 by V1? And if you all see, what will be V2 by V1? इसका anti-log हो जाएगा। Therefore V2 by V1 should be, इसका anti-log is 2.1. Therefore V2 is going to be 2.1 into V1. V1 is 5, so that makes it 10.5 meter cube, correct now? Yes, yeah. This obviously has to be in meter cube, है ना। आप यूनिट चेक कर सकते हैं। W max का यूनिट, है ना, हमने जूल्स में किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, जूल्स मतलब न्यूटन इंटू मीटर होता है, करेक्ट। यूनिट्स लिख रहा हूँ W max का, इसका तो यूनिट नहीं है। N is basically mole, R is joules per Kelvin per mole, and temperature is, है ना, अगेन इट इज इन केल्विन, करेक्ट। तो आप अगर देखते हैं केल्विन जाएगा, मोल जाएगा। ये क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर मतलब जूल्स है ना, ऐसे। तो जूल्स भी जाएगा, तो यूनिटलेस हो गया ना, परफेक्ट है। ये तो यूनिटलेस ही होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? तो यूनिट्स ये सब भी परफेक्ट है। और आप देख सकते हैं 5 से बड़ा आंसर है,
10.5 मीटर क्यूब इज योर आंसर। ये लॉग एंटी लॉग बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए उसके लिए वो मेन आंसर शीट में आपका वो प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इस तरीके से जनरली मैं करता हूँ, जस्ट अ सजेशन। सो ये टाइप 1 और टाइप 2 का न्यूमेरिकल्स अभी हमने देखा है ना। आई होप आपको ये समझा होगा, दोनों वर्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और आगे के टाइप्स करूंगा। ऐसे काफी सारे टाइप्स हैं, मेरे हिसाब से 10-12 टाइप्स हैं, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 10-12 टाइप्स तक तो ये जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ टाइप 2 ही किया है, उसमें वर्क W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी और W मैक्स का सम्स मैंने किया है। सिनॉप्सिस जो दिया है इससे रिलेटेड उसको देख के वापस एक बार देख लेना। वैसे लेक्चर ध्यान से सुनोगे तो उसमें सारी चीजें ट्रिक्स भी मैंने बताए हैं कि साइन कन्वेंशंस, यूनिट्स के कॉम्बिनेशंस कैसे इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट? And if you have liked the video, don't forget to press the like button and please do subscribe my YouTube channel, right? See you in the next lecture.